Please rise to welcome our dignitaries for today. Marching forward is our school principal, Father Nicola De Costa, our school administrator, Father Ivan De Silva, Vice Principal, Teacher Jacinta Lopez, Supervisor, Teacher Nicole D'Souza, and our guest of honor, PSI Sanjeev Jadhav Sir, and Traffic Constable Vikas Babar Sir. A warm welcome to all for the first investiture ceremony after pandemic for the academic year 2022 and 23. The investiture ceremony is the formal affirmation and public recognition of the leadership qualities of the designees. They are young and the road before them is long. This is the beginning of their leadership journey. They will be tasked with various responsibilities. May God bless them to work wisely and unitedly to make them successful in their endeavor. No auspicious occasion can ever begin without the light of Lord showing us the way. Learn more, do more, and become more, then you are an excellent leader. Good morning, Father Principal, teachers, and my dear friends. We, the students of St. Teresa's High School, have lots of expectations from our newly elected student council. Our captains are our role models. We expect them to abide by our school theme, be happy. We hope they will be an inspiration for us. Our captain should possess this trait. They will be an inspiration for us. The captain should be humble. It leads to better listening, cooperation, and compassionate behavior. A captain should be active, quick in his decision making and activity planning. A captain should be perfectionist, like high achiever, tend to set high goals and work hard towards them. The patient is essential when defining what true leadership skills are all about. In any stressful situation or challenging situation, to be mindful about increasing efforts with calm mind. Captain should be leader who gives, extend his positive influence when the situation is not so favorable, encouraging, motivating others to work hard. He should influence students to be more productive, resourceful, and ready. The fame of our school to greater heights. Let us now see a motivational song for our captains.
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि स्वरूप पधारे माननीय श्रीमान सर संजीव यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बैंड्रा ट्रैफिक डिवीजन में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में सेवारत हैं। साथ ही साथ सर विकास बाबर बैंड्रा ट्रैफिक डिवीजन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रांगण में पधारे अतिथि देव स्वरूप होते हैं। आपका मान हमारा सिरोधार्य है। इसी संदर्भ में मैं टीचर ऑस्टिना से आग्रह करूंगा कि कृपया सर संजीव यादव सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। टीचर ऑस्टिना। धन्यवाद सर। आपके दाएं तरफ सर विकास बाबर जी का स्वागत करने हेतु मैं टीचर ऑर्बिडा से आग्रह करूंगा कि कृपया पुष्पगुच्छ देकर आपका स्वागत करें। God loves His creation, and in His goodness He sustains the universe. Now let us pray now that He will bestow His blessing upon these ashes, so that He will renew and support us with His guidance. Almighty Father, You want us to increase Your gifts and to return them to You. And to your neighbor, accept these offerings in the form of ashes, which is a sign of duty and responsibility. Bless these ashes which we are going to give our captains, and may they wear them as a sign of responsibility and give them strength to fulfill their responsibility with joy for the success of the school and fulfilling all the responsibilities that are assigned to them. Bless them, bless all of us, so that as the theme of our school, Be Happy, and the sub-theme of our school and main important thing that we learn, discipline, may prevail in our school. We make this prayer in the form of God. Amen. Lead us, guide us, and inspire us, and leaders who make our school proud. Here we have our school head boy set ready to march towards the days along with the members of the student council.
Teresa's Boys High School promise to represent and serve our fellow students and set an example in all aspects of school life. We will adopt an active, truthful, impartial leadership role to carry out the duties and responsibilities entrusted to us. As captains, we will uphold the loyalty to the school and its fine traditions and be fully committed to all that St. Teresa stands for and strives to achieve. We pledge to treat the teaching, non-teaching staff and students with love and respect. We will maintain our strong character and moral values that stand on the pillar of respect, mutual understanding and love. Good morning and a warm greetings to all. Great leaders don't set out to be a leader, they set out to make a difference. It is never about the role, always about the goal. I, Rajveer Singh Rajput, is indeed honoured and privileged to receive this opportunity to serve my school, St. Teresa's High School, as a school captain. I feel short of words to express my emotion, but it would be ungrateful if I don't extend my gratitude towards our school principal, Reverend Father Nicola Vicosta, Vice Principal Teacher Jacinta, and Supervisor Teacher Nicole, all my school teachers and my schoolmates for considering me capable enough to entrust the responsibility of school captain. My prime duty is to abide by our school values and to deliver my duty with utmost care and discipline. From now on, my new journey is going to begin. So I request to all of you to please guide and support me in this journey. However, I will not give any promises as action speaks louder than words. I stand here as a leader, not just to lead you all, but to work in collaboration with each one of you to achieve the best for our school with all my hard work, determination and devotion. Thank you. God bless. प्रिंसिपल सर प्रोफेसर सर सीता मैडम शुक्रगुजार होंगे उन्होंने हमको यहाँ पे आने का मौका दिया। उसके बाद सर डिसिप्लिन के बारे में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन की वजह से हम आज पुलिस फोर्स में बराबर है, पुलिस फोर्स डिसिप्लिन है ना, तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है डिसिप्लिन। ये जो बच्चों ने अभी मार्चिंग किया, इतना मस्त मार्चिंग किया उन्होंने, तो उनके लिए क्लैपिंग बनता है। उनके जो टीचर्स हैं उनको भी थैंक करूँगा, क्योंकि मैं उनका मार्चिंग है उनको खूब देख रहा था, अरे का खूब बराबर चल रहा था, पहला मेरा टाइम उसके था। गुड। दूसरी बात है, हम लोग का डिसिप्लिन जो है ये हमारे घर से शुरू होता है, टीचर्स तो बाद में, पहले हमारे पेरेंट्स जो है वो डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो डिसिप्लिन हमारा सवेरे से शुरू होता है। कितने बच्चे हैं जो बिस्तर से उठ के सीधा वॉशरूम में घुसते, कितने बच्चे इसमें है? तो ये गलत है, बराबर। हमें पहला हमारा जो ब्लैंकेट है, जो चादर दिए उसको जमा करके बराबर फोल्ड करके कबर्ड में रखना है। इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह क्या है? हम लोग सोते हैं ना, तो हमारी सब एनर्जी है ना वो चादर में चली जाती है, और जब भी हम सुबह उठते हैं तो वो चादर हम जब फोल्ड करके रखते हैं तो हमारी एनर्जी फोल्ड करके कबर्ड में जाती है। हमारी चादर को जमा कर देती है, फोल्ड कर देती है हमारी मम्मी।
तो हमारी सब एनर्जी है वो मम्मी को पास होती है। तो मम्मी एनर्जी होती है, दिन पर मम्मी काम क्यों करती है? वो हमारी एनर्जी से काम करती है, बराबर है? तो आप थके हुए भी लगते हैं क्योंकि आपकी चादर फोल्ड की है मम्मी ने, बराबर है? तो ये आप कल से शुरुआत करती है, हमारी चादर हमें फोल्ड करती है तो बंद करती है, बराबर? सब लोग करेंगे जोर से। हाँ, ये डिसिप्लिन है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो टीचर, हम स्कूल जाते हैं, हमें ऑर्डर करती थी कि भाई होमवर्क करना है कल, लेकिन हम लोग खेल कूद में, साइकिल चलाने में, इसमें हम भूल जाते, होमवर्क नहीं करते। तो होमवर्क हमें करना है। क्यों करना है? वो हमें ऑर्डर है टीचर का कि वो करना है, हमारे फायदे के लिए हो। पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। पुलिस में पहला वो सिखाए ऑर्डर। अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करते तो जो 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ, आपको मालूम है सबको बच्चों? उसमें कौन सा टेररिस्ट को पकड़ लिया था? कसाब, करेक्ट, कसाब। तो कसाब को पकड़ा किसने? पुलिस ने पकड़ा, बराबर है, लेकिन उसमें एक जाबाज ऑफिसर था, मिस्टर ओमले साहब। मालूम है किसको ओमले साहब? तो उनको खाली एक मैसेज आया वो वायरलेस पे कि आपको वहां पे जाना है। उनको मालूम था कि वहां पे जो टेररिस्ट है उनके पास गन्स है, वो भी 56 लेटेस्ट और हैंड ग्रेनेड भी है, लेकिन डरे नहीं। उनको कंट्रोल ने मैसेज दिया और उन्होंने ऑर्डर फॉलो किया और वो टेररिस्ट को पकड़ा। जो एक टेररिस्ट में शहीद मर गया और दूसरा जिंदा पकड़ लिया। तो वो ऑर्डर फॉलो किया। अगर ऑर्डर नहीं फॉलो करते तो उनके पास कम से कम 400 या 500 लोग को मारने का एम्बिशन था। एम्बिशन समझते? गोलियां, हैंड ग्रेनेड, तो उनके पास था। अगर उनको हम वही नहीं रोकते तो कुछ भी कर सकते थे आगे, लेकिन हमने, मुंबई पुलिस ने वो काम किया। तो हम बच्चों लोगों को ये सुझाव करूंगा कि उंगली साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। तो उन्होंने जो ऑर्डर फॉलो किया तो टेररिस्ट पकड़ गए। तो ये ऑर्डर फॉलो करने के कहाँ से पैदा होता है? हमारे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बच्चों। डिसिप्लिन के सिवा कुछ भी नहीं। आप कहीं भी जाओगे, आप आगे स्कूल से कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आप आगे कॉर्पोरेट में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कल की मैं बात बताता हूँ आपको। कल की जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने बाइक्स जिनके पास है, जिन्होंने फाइन नहीं भरा, उनको हम लोग फाइन, गवर्नमेंट घर पे फाइन पहुँचाती है। उनका लेटर जाता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर, आपके कार के ऊपर या आपके बाइक के ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 फाइन पेंडिंग है। तो उसका काम मुझे दिया है कि आप घर पे जाओ, बांद्रा में जितने हैं उनको ये करो और को बताओ। तो भाई ऐसा हुआ, जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है तो उसको पहली जरूरत होती है साइकिल की नहीं, बाइक की जरूरत है। क्योंकि कॉलेज में जाता है तो उसको बाइक की जरूरत है, बराबर है ना? आप लोग भी चलाएंगे बाइक आगे, तो बाइक लेने के लिए उसको फोर्स कौन ना, घर में फोर्स करता है ज़्यादा? पापा, बच्चा तो करता है, उससे ज़्यादा फोर्स कौन करता है बाइक लेने के लिए? मम्मी करती है। मम्मी करती है कि नहीं, बच्चा 2 दिन से खाने गया, उसको बाइक लेना जरूरी है, बराबर है? तो कल ऐसे ही एक बच्चे ने, बांद्रा का मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, उसके घर पे हम लोग गए थे। उसने 6 महीने में, 6 महीने की नई बाइक है, 50,000 का फाइन किया है। 50,000। तो देखो मजा इसमें है कि उसको मालूम नहीं मैं ऑफेंस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वर्ली में एक CCTV सेंटर है, वहाँ से आपके ऊपर नजर रखती है आप बाइक कैसे चला रहे हो। हम रोड पे है, मिस्टर बाबर साहब है, मैं हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि क्या है, पुलिस वाला खड़ा है उधर से जंपिंग करके जा रहा है, ये विदाउट हेलमेट घूम रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वैसा नहीं आता है। तो वहाँ से वर्ली से उसके ऊपर नजर रखने वाला एक दूसरी आँख है, उसको तीसरी आँख बोलते हैं। वो उसको यही करता है, जो जेब्रा क्रॉसिंग, जंपिंग जो भी करता है वो उसको वहाँ पे कैद करता है। उसके फाइन उसको 50,000 तक आ गए। जब हम हमने उसके घर पे गए तो उसके पापा का हैरान हो गए और मम्मी तो पीछे के पीछे भाग गई, मम्मी रुकी ही नहीं। तो पापा बोला, अरे बाप रे, 50,000
अरे गाड़ी का कीमत भी नहीं उतना, इतना कैसे हो गया? तो वो बोला आपके बच्चे ने वैसा किया है और बच्चा तो घर पे नहीं था। बोले क्या करेंगे इसमें? बोला सर एक जज साहब ही नहीं उसको रिलीज कर सकते, आपको तो भरना ही है, तो अभी क्या करेंगे? बोला ठीक है आप हमारे इसमें आइए, सीनियर साहब को मिलिए और उनसे बात करिए क्या कर सकते हैं, उसकी वो रास्ता निकालेंगे। तो डिसिप्लिन नहीं था, इसके लिए 50,000 उसको फाइन आ गया। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप आगे गाड़ी चलाएंगे या आप पीछे बैठेंगे तो डिसिप्लिन की वजह से आप उसको बता सकते चलाने वाले को कि भाई ये ऐसा है, स्टॉप लेन है, इधर रुकना ही है, तो इसलिए आप तेरा फोटो खींच लेगा। तो बच्चे लोग समझ गए आप कि भाई डिसिप्लिन कितनी जरूरी है। जोर से तो कल से हम डिसिप्लिन ही रखेंगे, बराबर? चलो थैंक यू। Good morning, everyone. First of all, I would like to thank Principal, Vice Principal, teaching, non-teaching staff of St. Teresa for having us here and making us guest of honor. I am very small person for this gesture, but again I would like to thank each and everyone who thought that we can be a guest of honor here. So those who got the badges for captain, vice captain, head boy and all that. So now you all have the responsibility of your houses, your school. Especially I would like to tell something to the head boy. Who is head boy? Rajput, I guess Rajput. Yeah, you have a lot of responsibilities as a leader, because you know, not only sports fraternity, not only education, not only studies and all that, you have to keep your eye on entire activity around your school. As a head boy, you must not be aware plenty of antisocial elements are around your school. First of all, leadership मैं तुमको समझाना चाहूँगा थोड़ा बहुत, because I was in commando for 8 years, and after commando they gave me the choice. Now you have to get transferred from here because there is age limit in commando. 2012 I was best commando of India, 2 national gold, 2 international gold and 6 national gold. For entire 8 years, I was operation commander. So I was leader of my unit. I have done plenty of courses regarding leadership. I went to the Israel for the same course. 21 days, just one topic, that is leadership. They just told me, you are the one who's going to face the first bullet of the war, and you are the first one who's going to trigger the last bullet of the war. You have the badge of head boy. Now go to your home and just think what this badge means. आप स्कूल से छूटते हो, आपका रोल है कि देखो सब बच्चे सही गेट के बाहर जा रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे स्कूल को बिलोंग नहीं करता है, जो तुम्हारे किसी स्टूडेंट का पेरेंट नहीं है, अननेसेसरी 4-5 दिन से तुम्हारा स्कूल गेट के बाहर आजू बाजू में दिख रहा है, उसे नोटिस करो। फादर को बताओ कि ये बंदा, ये आदमी है, ये रोज यहाँ पे आ रहा है। आपको पता नहीं है, बट 15 डेज बैक हमारे यहाँ से जो ट्रांसफर हो गए थे मेरे बॉस, वो अभी क्राइम के बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने एंटायर मुंबई में रेड्स की थी सेम डे, और ऑलमोस्ट 30 लाख, इतना 30 लाख इलेक्ट्रिक सिगारेट पकड़ा है। इलेक्ट्रिक सिगारेट तो वो सिगरेट नहीं लगती है, उसको फायर नहीं देना पड़ता है, जस्ट बटन स्टार्ट किया और सिगरेट स्टार्ट हो जाती है। वो 30 लाख सिगरेट पकड़े, उसके पहले करीब 10 से 12 लाख सिगरेट डिस्पैच हो चुके हैं, और वो मैक्सिमम टीनेजर्स के हाथ में है इस वक्त। जो एडल्ट है वो उसका यूज नहीं करते, लेकिन टीनेजर्स,
इसका यूज़ ज़्यादा करते। स्टार्टिंग में वो आपको फ्लेवर देंगे, नॉर्मल फ्लेवर जिससे कोई नशा नहीं होगा। फ्लेवर टेस्ट करोगे आप, अरे स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है, चॉकलेट जैसा लग रहा है, इवेंचुअली उस फ्लेवर में आपको नशे की चीज़ें मिलेंगी। अभी एज एन योर स्टूडेंट फैमिली, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर चीज़ों का ध्यान रखें। लीडरशिप का मतलब होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ दिखाओ, देखो मैंने 98% निकाले, तुम सब निकालो, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर 80% भी निकाले तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा एवरेज 80% है उसको 90% के लिए आप मोटिवेट करो। टीचर को बताओ ये लड़का है, इसमें कैपेसिटी है, लेकिन ये बाहर ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कुछ फाइनेंशियली वीक है, हम इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। देखो अगर 100 शेर है, 100 टाइगर्स आर लेड बाय 1 goat, दे आर नॉट गोइंग टू विन, बिकॉज वॉर होने से पहले उनका जो लीडर है बकरी भाग जाएगी डर के, अल्टीमेटली उसको ही फॉलो करेंगे सारे टाइगर। लेकिन अगर 100 बकरियां है, 100 गोट है, लेकिन उनका लीडर एक टाइगर है, तो वो 100 बकरियां सोचते कि ये जंगल का राजा है, इसको छोड़ के जाएंगे तो वैसे भी बचने वाले नहीं है, तो ये जो करेगा उसके साथ चलो और ये हमें जिताएगा। तो यू शुड बी टाइगर, ओके, एंड यू शुड सेट अ बेंचमार्क for next year's head boy, that this is the benchmark and you have to maintain that level. So you have to be very disciplined, each and every captain, every house captain, head boy and all, you should maintain well discipline. दूसरों को बताने से पहले आप अच्छे डिसिप्लिन करना चाहिए। दूसरी बात मैं पेरेंट्स के लिए बताऊंगा, बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा ट्यूशन, अच्छे गैजेट्स, ये दिया मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता। मेरा लड़का स्कूल के बाद किसके साथ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, स्कूल से लेके घर के बीच में कहाँ रुकता है क्या, किससे बात करता है क्या, इन चीज़ों पर ध्यान रखना पेरेंट्स का काम है। मेरा लड़का स्कूल से छूटने के बाद अगर आप उनको लेने जा रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोड के उस तरफ इस तरफ आगे खड़े हो जाओ और उसको लेके जाओ। बाय फॉर्चून ये ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड नहीं है, पर जिन स्कूल में ट्रैफिक है, बड़े हाईवेज के कनेक्टेड है, उधर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेट पे आओ, बच्चे को लो और जाओ, क्योंकि बच्चे जब एक साथ चलते हैं तो ध्यान नहीं देते ट्रैफिक के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, वो हंसी मजाक करते करते रोड क्रॉस करते हैं। उसके बाद जो हाउस के कैप्टन है और हेड बॉय है, अपने बच्चों का जो हाउस है उसके कैप्टन का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास, उनके पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रखो, कुछ प्रॉब्लम है उनको एस्केलेट करो। और यही कहूँगा कि यू आर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंडिया। आई ऑलवेज ट्राई, अगर आपने सर ने बताया कि 26/11 का इवेंट, मैं बस शिफ्ट करके घर पे आया था, जैसे टीवी चालू की मैंने मेरे वाइफ को बोला मुझे जाना पड़ेगा। बोलते क्यों? मुझे मालूम मुझे कॉल आने वाला है। मैं आधे रास्ते में गया और मुझे फ़ोन आया, तो मुझे बोले कि आपको अभी उधर रिजर्व रहना है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं बोला मैं इतने घर से आया हूँ, मुझे एक्चुअल ऑपरेशन की जगह पे जाना है। तो सब लोग बोल रहे पागल है क्या, वहाँ जाना है जाना है जाना है जाना है। मैंने कितनी कोशिश की कि मुझे वहाँ पहुँचना ही है, मुझे एक्चुअल ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना ही है। तो मैं कैसे पहुँचा वहाँ मालूम है, वहाँ पे सैंड बैग्स की ज़रूरत थी, हम एक वॉल बना थे डिफेंस के लिए, सैंड बैग्स लगा के, तो वहाँ पे सैंड बैग्स लेके जाने थे। तो मैंने इमीडिएट रात में भरना स्टार्ट कर दिया। नायगांव में लॉन्ग जंप के लिए सैंड पड़ी थी, तो मैंने भरे सब, मैंने मेरे दोस्तों ने। और अचानक वो आ गया, किसने भरा? बोला हम 11 जन ने भरा ही अभी। अच्छा चलो तुम 11 बाजी हो जाओ, तुम अभी इसको लेके उधर जाओ। मैं बोला सर मैं सब खाली कर दूँगा, मुझे उधर मैंने भरा है मैं ही लेके जाऊँगा। नहीं तुमने भरा, तुमने मैंने किया, ये लोग लेके जाएंगे उधर। मैं बोला सब खाली कर दूँगा, इधर जाऊँगा, मैंने भरा है मैं ही वहाँ पे जाऊँगा। और ऑलमोस्ट 40+ आवर्स में वहाँ पे था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, सब देखा। तो थोड़ी सी गलतियों की वजह से आज हम फेस कर रहे हैं। अगर ताज होटल का सिक्योरिटी हेड या शिफ्ट इंचार्ज, इन्होंने वो जो रेकी करने आए थे उनके ऊपर ध्यान रखा रहता,
ये बंदे रोज यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, रोज क्यों घूम रहे हैं, ये बार बार होटल्स के फोटो क्यों ले रहे हैं, ये बार बार होटल्स में विजिट क्यों कर रहे हैं, तो शायद ये नहीं होता। उनके थोड़े से नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ है। सो गाइस, यू गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गॉट द रैंक एंजॉय करना जितना जरूरी है उसको उतना लिव अप, एक्सपेक्टेशन को लिव अप करना है तो उतना जरूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड आई होप यू ऑल डू वेल। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Members of the dignitaries, respected parents, respected teachers, members of the Students' Council and my dear students. It's indeed a very important day for us as we are talking about the uniforms. I don't want to talk more today because sirs, both of them, have given us the actual experience and the actual thing about leadership for our Students' Council and discipline for all of us to become good citizens, to become good human beings. I think they have given us such a wonderful topic and wonderful experiences and given us the tours in such a nice way that they deserve a big round of applause for doing that. Thank you, sir. The message really came from their experiences and from their hearts. So what we are celebrating today is uniforms. Uniforms stands for leadership and discipline. Both the sirs have covered that area, leadership and discipline. Now how many of us are wearing uniforms here? I can see. Now I'll tell you, both the sirs are wearing their uniforms and their uniform talks about leadership, responsibility and what they have to do. The service for the people, and they are all the time on the road making sure that all of us have a good life. The second people in uniforms are Father Ivan and me. You see us in our uniform that is there. It talks about the education that we need to impart. It talks about the values that we need to impart. It talks about the responsibility of leadership that we need to impart. Today we saw this, our own students having their sashes and badges. Again, uniform talking about leadership, which sir has already covered. And all of my dear students are also wearing uniform, which tells that you belong to St. Teresa's Boys School. Not just only in the school compound, but sir said even outside. So you need to have that responsibility that I belong to a school, I have a discipline to maintain, I have a responsibility to maintain. And all of us, teachers, parents, have the responsibility. So we all of us march forward. We always go ahead in life, as sir said, keep benchmarking or go up in life. So we happily march together. So we'd like to thank all of you, the organizing committee for the day, Students' Council, all the best to you for your new year that is going to come, your 1 year at your hand to practice your leadership. Thank you and congratulations for parents for your sons are part of this Students' Council and my dear teachers. May God bless all of us to happily march forward. Thank you. Thank you, Father.